Students, in this session we are continuing chapter 2, class 10, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and this is part 2. So we have first activity here. In column A are some expressions you will find in the text. Make a guess and match each expressions with an appropriate meaning from column B. So first we have a rainbow gathering of different colors and nation. You will match it with D. A beautiful coming together of various people like the color in a rainbow. Next है the seat of white supremacy. तो इसको आप मैच करेंगे with E. The center of racial superiority. Third, be overwhelmed with a sense of history. It will be matched with F. Feel deeply emotional, remembering and understanding all the past events that have led up to the moment. पुरानी बातों को जो पुराने घटित हुई हैं उनको याद करना. ठीक है. फोर्थ है resilience that defies the imagination. तो फोर्थ वन विल बी मैच्ड विद A. इधर आ जाइए ऊपर. A great ability, almost unimaginable, to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness or courage. And then we have fifth one, a glimmer of humanity. So you will match it with C. Yes, C. क्या है यहाँ पर? A sign of human feeling, goodness, kindness, pity, justice, etc. Okay? Glimmer of humanity. यानी kind होना human के साथ, इंसानियत जिसे हम कहते हैं. So sixth one is a twilight existence. So what will be the meaning of this? You will match it with B. A half secret life, like a life lived in the fading light between sunset and darkness. धीमी, dim light, twilight, धीमी light. So we have done this activity. आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में कर लीजिए. Next we have chapter explanation here. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो मैं काफ़ी पहले बता चुकी हूँ कि किस चीज़ का इनाग्रेशन है, क्या वहाँ पर हो रहा है. The inauguration would be the largest gathering over of international leaders on South African soil. तो साउथ अफ्रीका में पहली बार ये सब हो रहा है. एंड दिस डे वॉज 10th May and it was daylight. Dawn means daylight और दिन का निकलना. So पहली बार besieged here, to be surrounded. Mandela says here that he was surrounded by many big personalities, respectable personalities for the first time, and this was the occasion of his oath-taking ceremony. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria, and this was taking place in Pretoria. For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. So amphitheater is a building without a roof with many rows of seats rising in steps, typical of ancient Greece and Rome. जिस तरह के बड़े थिएटर बनाए जाते थे, हॉल बनाए जाते थे ग्रीस में, जहाँ पर इस तरह की सेरेमनीज और गैदरिंग हुआ करती थी. सो दैट इज़ एम्पी थिएटर. सो दिस वॉज हैपनिंग इन प्रिटोरिया बिल्डिंग में. ये वहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है. और सो सेरेमनी इज टेकिंग प्लेस इन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया. देयर वॉज अ लार्जेस्ट गैदरिंग. All the leaders have gathered there in South Africa for the first time, and Nelson Mandela had been elected the first black president, and this was the non-racial government. पहली बार ऐसा हुआ है कि अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है. इंस्टॉलेशन मतलब
फॉर्म की गई है और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए नेल्सन मंडेला जी की स्पीच सुनने के लिए वहाँ पर सभी लोग गैदर हुए हैं. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ैननी ऑन द पोडियम. मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president. So all the elected bodies, all the leaders who had been elected, they are taking oath. So first of all, the oath was taken by Mr. D. Clerk, and Mr. Mandela had gone there with his daughter. जैसे कि वो यहाँ बता रहे हैं, it was a lovely autumn day, और वो अपनी बेटी के साथ वहाँ पोडियम पर खड़े हुए हैं स्टेज पर, और वहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क पहली बार ओथ ले रहे हैं. स्वेर का पास्ट टेंस है यहाँ पे. सोन, ये देख रहे हैं आप लास्ट लाइन में, वी फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट. वॉज फर्स्ट सोन. सो स्वेर का पास्ट टेंस है ये सोन, शपथ लेना, कसम खाना या शपथ लेना. देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president when it was my turn. Who is my here? Mr. Mandela. वो अपने लिए कह रहे हैं कि अब मेरा टर्न था. I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. फिर उन्होंने वो प्लेज लिया, वो शपथ ली, जैसे कि एक लीडर अपनी ऑफिशियली ड्यूटीज़ जब वो एक्सेप्ट करता है, लेता है, तो वो शपथ खाता है जब अपना वर्क वो शुरू करता है. तो उन्होंने भी शपथ लिया, प्लेज लिया कि वो हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे और पूरे समर्पित भाव से वो अपना वर्क करेंगे. किसके लिए? फॉर द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, अपने देश के लिए और उसके लोगों के लिए. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, सबके सामने उन्होंने कहा, आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty. And then he said to the pupil, while he was addressing to the pupil, and it is the time that he is taking oath as he had been elected president of South Africa for the first time. So confer glory and hope to newborn liberty. Underline this, newborn liberty. आप अपनी बुक में इसको अंडरलाइन करिए, ध्यान से देखिए. न्यूबॉर्न लिबर्टी से यहाँ पर मतलब है न्यूबॉर्न यानी नवजात, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. सो साउथ अफ्रीका में जो अभी अभी ये जो फ्रीडम मिली है, लिबर्टी मिली है, तो उसको बोला गया है न्यूबॉर्न लिबर्टी. और कन्फर मीन्स हियर गिव, हियर जैसे इट मीन्स हियर गिव, देना. सो कन्फर ग्लोरी, दे ऑल वर प्रेजेंट देयर, वहाँ पे सब वो उपस्थित हैं. और वो उपस्थित होकर क्या कर रहे हैं? एक उम्मीद दे रहे हैं आगे के लिए, एक आशा दे रहे हैं कि भाई ये जो अब आज़ादी हम सबको मिली है, साउथ अफ्रीका को मिली है, सारे कुछ डिस्क्रिमिनेशन से, उस भेदभाव से हम दूर हुए हैं, ख़त्म हुआ है वो. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. Often questions are asked from this line. What is human disaster, extraordinary human disaster, why it is said here so, ऐसा यहाँ क्यों कहा गया है, काफ़ी क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं. सो ये एक ऐसा अनुभव था, या वो बता रहे थे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर वो क्या था, यानी एक इंसान का दूसरे इंसान को ऑप्रेस करना, है ना, और इनजस्टिस करना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना, जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा था, तो वो अब ख़त्म हो गया था. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी. तो वो उम्मीद कर रहे थे, तो एक लंबे समय के ऑपरेशन के बाद, इस अत्याचार के बाद, ह्यूमिलिएशन के बाद, जो कि डिस्क्रिमिनेशन था, वो उम्मीद कर रहे थे कि एक सोसाइटी अब ऐसी बननी चाहिए, एक समाज ऐसा होना चाहिए जिसको सभी मनुष्य जाति उस पर प्राउड कर सके. वो ऐसा कौन कह रहा है? मिस्टर मंडेला ये समझा रहे हैं और कह रहे हैं. सो ब्लैक वर ऑप्रेस्ड
by the white people there in South Africa, and these white ruled for over 300 years. और उस समय को Mr. Mandela calls here an extraordinary human disaster. And now they were liberate, they have got freedom from the oppression. So that is why this extraordinary human disaster has been termed as the glorious human. That is why this liberation from oppression, ये oppression से आज़ादी, liberation, has been termed as the glorious human achievement. अभी आगे वो कहेंगे इसको. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. So he again says for the South African कि they were the outlaws. Outlaws in sense because of its policy of apartheid. Many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa, as it is given here aside. कि we who were outlaws से मतलब है कि एक जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने अपने रिलेशन साउथ अफ्रीका से ख़त्म कर दिए थे, तो उनको ऐसे रहना पड़ता था. बट इट वॉज अ ग्रेट थिंग दैट टुडे दे हैड बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज. टुडे मतलब दैट डे व्हेन दिस ओथ वॉज taken by Mr. Mandela there and other and his colleagues there as they won. So they were hosting the nations and all the dignitaries, representative were there, and they honored them by gathering there with their presence. So we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो वो अपना जो ये अचीवमेंट था इसके लिए कहते हैं और थैंक बोलते हैं सभी लोगों के लिए जो दूसरे दूसरे देशों से आए हैं, इंटरनेशनल गेस्ट के लिए जो वहाँ पे उपस्थित थे, आए थे, और वो ये कहते हैं कि वो जिस अधिकारों को लेने के लिए आए हैं वहाँ पर, और क्योंकि ये एक सभी की जीत थी, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, यानी इंसान की अपनी रिस्पेक्ट के लिए. वी हैव एक अगर ह्यूमन रेस और ह्यूमन कास्ट या कोई भी क्लास एक दूसरे ऐसे ही लोगों को ऑप्रेस करते हैं या उन पर रूल करते हैं या इनजस्टिस करते हैं, तो एक ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बात होती है, क्योंकि एक इंसान को उसकी इंसानियत के लिए जाना जाता है. तो मनुष्य जाति को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही शेमफुल थिंग होती है. तो वही वो यहाँ पर बता रहे हैं और उसके लिए वो प्राउड महसूस कर रहे हैं और लोगों को थैंक कर रहे हैं वहाँ पे गैदर होने के लिए. सो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So what he says in his speech, we have at last achieved. अचीव यानी गेन करना, ऑब्टेन करना, प्राप्त करना. तो वो कह रहे हैं हमने फाइनली अचीव कर लिया है हमारा पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन हेयर मीन्स लिबर्टी, अगेन फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन इट इज गिवन हियर. एंड इमेंसिपेट का मीनिंग रेस्टोरेशन भी होता है, जैसे लिबरेशन, आज़ादी, मुक्ति, जिसे हम कहते हैं मुक्ति. तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने एक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन गेन किया है एंड वी हैव गॉट रिड ऑफ द बॉन्डेज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डेज. बॉन्डेज यानी बंधन. किन बंधन से हमने आज़ादी पाई है? वो बंधन है यहाँ पर पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination, all kind of discrimination in the name of poverty,
और बहुत से लोगों को, एक क्लास को, चाहे वो पुअर हो या किसी भी वजह से किसी एक ख़ास ग्रुप को कुछ चीज़ों से वंचित रखना, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित रखना, डिप्राइव करना, तो ये एक तरह का ऑपरेशन होता है। तो हमने उन सब बंधन से मुक्ति पा ली है। एंड नाउ वी आर लिबरेट। अब हम सब मुक्त हैं, एमेंसिपेट हैं, आज़ाद हैं, और हम अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। So never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. And he was happy. He feels that no more oppression, no more discrimination will be there on the soil of South Africa. कि उस ज़मीन पर अब और ज़्यादा ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वहाँ पर एक अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा कोई भी अनुभव नहीं करेगा किसी भी तरह का ऑपरेशन। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट। और यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग है, बहुत ही सुंदर सी लाइन है यहाँ, द सन शैल नेवर सेट, और ये सूरज कभी नहीं डूबेगा। किस चीज़ का सूरज? सो ग्लोरियस, ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। इतने शानदार ह्यूमन अचीवमेंट को जो इंसान ने प्राप्त किया है, यानी उन्होंने मेहनत करने के बाद ये जो फ्रीडम पाई है और वो इस लायक हुए हैं कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर पाएंगे। अब वो एक बहुत फेयर गवर्नमेंट होगी और वो सबको समान अपॉर्चुनिटी देगी, समान जस्टिस देगी और किसी को कोई अन्याय नहीं सहना पड़ेगा। तो इस तरह का जो सूरज है वो कभी नहीं डूबेगा और ये हमेशा खिलता, उगता, बढ़ता और आगे ग्रोथ पाता रहेगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और वो बहुत खुश होकर कहते हैं कि अब अफ्रीका में सिर्फ आज़ादी ही अपना राज्य करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को वो ब्लेस करते, ऐसा बोलते हैं। सो हियर वी सॉ नेल्सन मंडेला टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट of his Democratic Party in South Africa. In his oath-taking ceremony, he pledged to obey his constitution. He also pledged to devote himself to the well-being of public. He thanked and welcomed his international guests that they became the part of his country's common victory, and that was the victory of peace, liberty, justice and human dignity. Now they were free of bondage of deprivation, slavery and sufferings, gender discrimination. South Africans were very happy and enjoyed and celebrated their victory. हमने यहाँ देखा ये सब। And Mr. Mandela blessed his country and wished the glorious sun not set but always shine on his country. So now we have question answers here. Oral comprehension check. So where did the ceremony take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? Sandstone को हिंदी में बलुआ पत्थर भी कहते हैं और ये क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, बलुआ पत्थर जिसे कहते हैं। तो इसकी आपने देखी कि पुरानी बिल्डिंग्स जो इस रॉक की, सैंडस्टोन की बनी होती थी। वी हैव मैनी बिल्डिंग्स इन इंडिया। जितनी पुरानी बिल्डिंग्स है, काफ़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लाइक पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, और राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं ये आपके सैंडस्टोन की बनी हुई हैं। So these are the buildings made up of sandstone. I have told you just now. Second question you see, can you tell how 10th May is an autumn day in South Africa? Autumn day, autumn season है during the month of May, क्योंकि autumn season होता है month में साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका इज़ इन सदर्न हेमिस्फेयर, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे इसको autumn day in South Africa कहा गया है। So we have autumn season during the month of May in South Africa. It is in southern hemisphere. That is why. Okay.
So next question. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks at the end? मैंने अभी बताया था, ये मैं पहले भी आपको अभी बता चुकी हूँ, आप ऊपर फिर से स्क्रॉल करके जाइए और उसे सुन सकते हैं. सो ये ऑपरेशन की बात हो रही है, विच ब्लैक पीपल वर ऑप्रेस्ड बाय द white in South Africa. In those days there were many social evils prevailing in South Africa, and one of them was that race discrimination, racial discrimination, and more than 300 years it happened. They ruled, white people ruled over black people. So उसको उन्होंने an extraordinary human disaster बोला है, ठीक है. और when they got rid of this, जबकि हम ये स्पीच सुन रहे हैं मिस्टर मंडेला की, तो यहाँ पे उन्होंने अपना जो वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं तब वो स्पीच दे रहे हैं, और उनकी गवर्नमेंट है जो कि अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल फेयर गवर्नमेंट होगी, और इसीलिए वो कहते हैं कि लिबरेशन फ्रॉम द ऑपरेशन हैज़ बीन टर्न्ड एज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What does Mandela thank the international leaders for? वो इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर ज्वाइनिंग हिज कंट्रीमैन इन द कॉमन विक्ट्री, है ना, बिकॉज दे हैड ज्वाइंड, इट वॉज देयर कॉमन विक्ट्री. उन्होंने वहाँ पे आके उनको ज्वाइन किया, सबकी जीत मानी जा रही है वो. सो और किस चीज़ की जीत होगी? अभी जैसे कि मैंने बताया कि देयर विल नॉट बी एनी मोर ऑपरेशन, इनजस्टिस, सो दैट वुड बी द विक्ट्री ऑफ पीस, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, है ना, ऑपरेशन, ये सब चीज़ों के लिए होगी. अब सारे अन्याय वहाँ ख़त्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वन. व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में कैसा होगा, है ना. तो वो सोच रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं दैट पीपल विल बी लिबरेट इन साउथ अफ्रीका एंड दे विल गेट रिड ऑफ द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग एंड ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब अब नहीं होगा. तो यू कैन फॉर्म योर आंसर. Next session I will explain the remaining chapter. तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आता है तो आप आगे कंटिन्यू स्टडी करते रहिए मेरे चैनल पर. सो वी फिनिश टुडेज सेशन हियर. आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. बाय बाय.